हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंशिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो देर आर टू sections. First one is structure and second one is the functions. So first one is a mouth used for ingestion. Pharynx is used for propulsion of food through the organs. Esophagus for breaks down food into usable molecules. And small intestine, it is useful for absorption of nutrients, and large intestine is used for to eliminate waste material. So you can see here mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and the large intestine. These structures have the particular functions like ingestions, preparation of food through organs, breaks down food into usable molecules, absorptions of nutrients and eliminate waste. So, next point is the GI tract. So you can see here figure here salivary glands presents, and it is a esophagus, it is a mouth, it is a liver, it is a stomach, it is a pancreas, it is a gallbladder, it is a small intestine, and it is a large intestine, it is a appendix, and it is a rectum. This is a overall organs and main digestive organs of the GI systems or the alimentary canal. So alimentary canal is a tube that has opening at the both ends of your body from mouth to rectum. Now come to our next point. First we see here a mouth. Mouth is a oral cavity, and lips, cheeks, tongue, teeth, seen here, salivary glands, and hard and soft plates. So there are two types of digestion. First one is the mechanical digestion, second one is the chemical digestion. So the mechanical digestion is a chewing or a mastication, यानी कि जो हम फूड खाते हैं तो जो फूड हमारा लार्ज होता है उसे हम चीव करके और मेस्टिकेट करके स्मॉल करते हैं, स्मॉल करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको खाते हैं या फिर निगलते हैं. और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, सैलिवा स्टार्ट टू ब्रेक डाउन द फूड. जैसे कि आपने अभी फर्स्ट फिगर में यहाँ पे देखा है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, देखिए यहाँ पे इस फिगर में बताया गया है, इट इज़ अ सैलिवरी ग्लैंड. और सैलिवरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, सैलिवा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प होती है. और आप इस फिगर को भी अच्छे से देख सकते हैं. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर माउथ, इट इज़ अ लिप्स, दैन लिप्स, टीथ, it is a hard plate, it is a soft plate, retromolar tongue, then tongue front, it is a uvula, gums, buccal mucosa, and the floor of the teeth. So you can see here the mouth. Then come to the next point, it is a salivary gland. So salivary gland produced mucus and mucus to
is a cardia, it is a pylorus, it is a body of stomach and it is a antrum of stomach. तो अब हम stomach के functions देखते हैं. Stomach produce gastric juice that contains the enzyme. जो gastric juice stomach प्रोड्यूस करता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. और स्टमक क्या करता है, फूड को मिक्स करता है. एंड इसका जो सेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्रिस क्रॉस पैटर्न का होता है. सो दिस इज क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ मसल मेक द स्टमक अ ग्रेट मिक्सचर. तो क्रिस क्रॉस पैटर्न होने की वजह से जो स्टमक होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न के मसल्स क्या करते हैं, मेक द स्टमक अ ग्रेट मिक्सचर. एक मिक्सचर की तरह वो वर्क करते हैं जो एक दूसरे में क्या करते हैं, फूड्स को मिक्स करते रहते हैं. सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. तो देखिए आप यहाँ पे हमको इंटेस्टाइन की फिगर बताई गई है. तो पहले इस फिगर को आप लोग समझ लीजिए. इट इज़ अ स्टमक, इट इज़ अ duodenum and it is the jejunum and it is a descending colon and it is a ascending colon. It is appendix, it is a ileum, it is a rectum, it is a sigmoid colon on and transfer colon. तो अब आप जैसे कि हम लोग जानते हैं इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन और इट इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन और द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मस्ट केमिकल डाइजेशन हैपन्स हियर. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि केमिकल डाइजेशन हैपन होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन सीक्रेट होता है और न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन होता है. उसके बाद हम एक मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो है मैक्रोविली. सो व्हाट इज़ द मैक्रोविली. तो देखिए यहाँ पे मैक्रोविली की फिगर हमको बताई गई है. 2 cells ऑफ द वायरलेस एपिथेलियल शोइंग ब्रश बॉर्डर. तो मैक्रोविली क्या होती है, एक ब्रश बॉर्डर होती है और ये यहाँ पे हमको सेल्स में वायरलेस के थ्रू दिखाई गई है. सो मैक्रोविली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम. तो अब जैसे कि हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है और केमिकल डाइजेशन में हमको क्या करता है, हेल्पफुल करता है. तो मैक्रोविली उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है. जो मैक्रोविली का सरफेस एरिया होता है वो एंजाइम सीक्रेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है. उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देखिए लार्ज इंटेस्टाइन. सो इट इज़ अवर large intestine and it is our liver and it is the spleen area. Okay, so large इंटेस्टाइन का फंक्शंस क्या है. तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वो ऑब्जर्व करता है वाटर को. क्या करता है, ऑब्जर्व करता है वाटर को, लेकिन फिर से दोबारा से ऑब्जर्व करता है, इसलिए हम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलेंगे. एंड लार्ज इंटेस्टाइन एलिमिनेशन ऑफ अ फीसेस. जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो फीसेस के थ्रू क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, निकाल देता है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लीवर. तो पहले हम देखते हैं फिगर. सो इट इज़ अवर लीवर. व्हाट इज़ लीवर. अब इसके भी कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है आपके पास प्रेजेंट. उसके बाद क्या है, राइट हिपैटिक डक्ट प्रेजेंट है, पोर्टल वेन प्रेजेंट है, कॉमन हिपैटिक डक्ट प्रेजेंट है. इट इज़ अवर गॉल ब्लैडर, इट इज़ अ सिस्टेटिक डक्ट एंड हिपैटिक आर्टरी एंड इट इज़ अ स्प्लीन. सो this is the some important areas of a liver. So function of liver is liver a large gland that secrete while that helps break down food. तो ये क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है जो क्या करता है, सीक्रेट करता है. लीवर लार्ज क्लैम दैट सीक्रेट वाइल दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड. यानी कि कुछ इंजाइम्स जो है सो सीक्रेट करता है जब वो फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड. और लीवर का क्या काम होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के अंदर उसको रिमूव करता है लीवर और फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो वो है हमारे पास गॉल ब्लैडर. क्या है, गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, सीक्रेट बाइल व्हेन फैटी फूड्स आर ईटन. अगर हम फैटी फूड्स ईट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा तो वो बाइल क्या करता है, सीक्रेट करता है बैलेंस करने के लिए. ओके, और गॉल ब्लैडर को हम यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं. देखिए यहाँ पे इट इज़ अवर गॉल ब्लैडर. वेयर इज़ फिगर. देखिए ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, देखिए ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये क्या है, गॉल ब्लैडर है. उसके बाद हम जो है सो नेक्स्ट फिगर देखने वाले हैं. सो कहाँ थे हम लोग, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पैंक्रीज. सो पैंक्रीज एनाटॉमी. It is our gallbladder, it is a lobules, it is a tail, it is a pancreatic duct, it is a body, it is a neck of a
body and it is a head. So function of pancreas is pancreas secrete amylase produce and lipase that help break down the फूड. तो पैंक्रियाज क्या करता है, अमाइलेस और लैपेस को क्या करता है, ब्रेक डाउन सीक्रेट करता है ताकि फूड को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके. देखिए यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है. लैपिस में थोड़ा टाइपिंग के वक्त प्रॉब्लम हो गया है. ये एक्चुअली लैपेस है, नॉट अ लिपीज. ओके, सो पैंक्रियाज सीक्रेट अमाइलेस प्रोड्यूस एंड लैपेस दैट हेल्प ब्रेक डाउन फूड. एंड पैंक्रियाज आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ऑर्गन बाय सीक्रेटिंग ग्लूकागोन एंड इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या करना है, रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पैंक्रियाज क्या करता है, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन क्या करता है, सीक्रेट करता है. सो इट इज़ अ वर्किंग एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन आल्सो. सो नेक्स्ट अगर हम अपना पॉइंट देखते हैं, डाइजेशन. सो डाइजेशन ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय अ ब्लड. डाइजेशन एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द ब्लड. और जो स्मॉल पीसेस होते हैं हमारे उसके थ्रू जो भी है कि नहीं, हमारे जैसे कि न्यूट्रिएंट है, ये है विटामिन है, वो जो हमारे बॉडी को मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं, ब्लड के थ्रू मिलते हैं. तो डाइजेशन के भी कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ द केमिकल डाइजेशन. सो जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें फूड इज चीव्ड, मिक्सड एंड चर्नड. यानी कि फूड को हम क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, मिक्स होता है, चर्नड होता है. बस इस प्रोसीजर को हम बोल देंगे मैकेनिकल डाइजेशन. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक लेडीज़ है, ये लेडीज़ क्या कर रही है कि बर्गर खा रही है. तो मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व चीविंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. ओके, अब जैसे कि फूड इज ब्रोकन डाउन बाय 2 एक्शंस. फूड क्या है, किसके थ्रू ब्रोक होता है, 2 एक्शंस के थ्रू. तो फर्स्ट वन कौन सा है, मैकेनिकल डाइजेशन और द फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस. जैसे कि एक बड़ा सा बर्गर है और ये बर्गर छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है. तो इट इज़ अ मैकेनिकल डाइजेशन. बट इन केमिकल डाइजेशन केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन फूड. केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो फूड होता है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है. जैसे कि अब हमने है कि नहीं मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू फूड को स्मॉल पीसेस में लिया और वो हमारे इंटेस्टाइन तक, स्टमक तक पहुंच चुका है. अब उसके बाद केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस है, हमारे स्टमक में क्या होता है, शुरू होता है एंड एंजाइम एंड एसिड हेल्प ब्रेक डाउन द फूड. और जो स्टमक के जो एंजाइम्स होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं और एसिड्स प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड को. ये यहाँ पे हमको केमिकल डाइजेशन बताया गया है. देखिए, लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड थ्रू दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो ये जो ब्रेक डाउन का काम है ये कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. देखिए ये इट इज़ अ मैकेनिकल डाइजेशन, मोर स्मॉलर पीसेस, मोर सरफेस एरिया, मोर इफिशिएंट केमिकल डाइजेशन. यानी कि जितना ज़्यादा है कि नहीं क्या होगा, स्मॉलर पीसेस में मैकेनिकल डाइजेशन होगा अच्छे से, और स्मॉल पीसेस होंगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से फिर क्या होगा, हमारा केमिकल डाइजेशन होगा. और केमिकल डाइजेशन को यहाँ पे बताया गया है, पॉलीसैकेराइड्स का डाइजेशन एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, जहाँ पे हमारा सैलिवरी अमाइलेस क्या करता है, फूड को हाइड्रोलाइसिस करता है. और पैंक्रेटिक अमाइलेस, उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये डाइसैकेराइड्स में चेंज होते हैं, फिर से उनका हाइड्रोलाइसिस होता है और फिर वो मोनोसैकेराइड्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ब्रश बॉर्डर एंजाइम सुक्रेज, लैक्टेज एंड मेल्टेज. और ये हाइड्रोलाइसिस करने के लिए यहाँ पे ब्रश बॉर्डर यानी कि मैक्रोविलिस प्रेजेंट्स होते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मैक्रोविली के बारे में. तो उनके जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं. तो वहाँ पे एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज एंड द मेल्टेज. उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल डाइजेशन. तो केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोक डाउन, प्रोड्यूस ब्रांड न्यू स्मॉलर मॉलिक्यूल. जैसे ही हमारा फूड मॉलिक्यूल छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, रिक्वायर्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड वाटर एज अ सबस्ट्रेट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन. तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हाइड्रोलाइसिस भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है. तो ये हाइड्रोलाइसिस किसके थ्रू होता है, पैंक्रेटिक अमाइलेस के थ्रू होता है और सैलिवरी अमाइलेस के थ्रू होता है. और फिर ये फूड डाइसैकेराइड में चेंज होता है, जिसे हम जीआई ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, जीआई
ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। डाइसेक्राइड फिर से हाइड्रोलाइसिस होता है और वो मोनोसेक्राइड्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं हमारा, वो है एब्सॉर्प्शंस। तो एब्सॉर्प्शंस क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं। ये है स्टार्च मॉलिक्यूल, इट इज़ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इट इज़ अ माइक्रोवेवली सरफेस एरिया एंड सेल्स ऑफ एन इंटेस्टाइन वॉल। ये हमारे इंटेस्टाइन की क्या है, वॉल है, और ये जो हमारे क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो आइए अब एब्सॉर्प्शन में है क्या, तो एब्सॉर्प्शन रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। एब्सॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी होती है, सेलुलर एनर्जी नेसेसरी होती है। मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन ऑकर इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादातर कहाँ पे ऑकर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुगर एंड अमाइनो एसिड गो इनटू ब्लड स्ट्रीम, सॉरी ये स्क्रीम नहीं है, ये स्ट्रीम है। सो स्ट्रीम बाय कैपिलरीज इन द विली। तो जो शुगर और अमाइनो एसिड होते हैं वो ब्लड में किस तरह से ऐड होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में वाया कैपिलरीज और द विली के थ्रू वो ऐड होते हैं। उसके बाद जो हमारा क्या है स्ट्रीम, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रीम को, ओके। सो इरेज भी कर देते हैं हम ये। उसके बाद फैटी एसिड गो इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो एक लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, और इस तरह से ये ओवरऑल एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एलिमिनेशन का प्रोसेस। तो इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हियर। तो लार्ज इंटेस्टाइन मूव इनडाइजेस्टेबल कंटेंट टुवर्ड्स द रेक्टम। तो अब जो भी हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, फ्लो होता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, डाइजेस्ट